playing a sport is going to give you the best opportunity to be happy and you don't get bored of it because you picked it up ना. तो स्पोर्ट को थोड़ा हमें लूजली डिफाइन करना चाहिए सोसाइटी में. हो सकता है आपका स्पोर्ट आपके पेट को वॉक कराना हो. आपको बहुत मजा आता है अपने डॉग के साथ खेलने में. That's your sport. The physio inside me. Dr. Ashish Kaushik, physiotherapist, co-founder of Your Sports Health, is a leading expert in musculoskeletal health. He has worked with top athletes like Yuvraj Singh, Ishant Sharma and held key roles at the BCCI, County Cricket and the National Health Services UK. Dr. Kaushik is dedicated to bringing world-class treatments through his Your centers to the common man. His only vision is To ensure that we do everything that we can पहले to prevent injuries. तो लोग फिजियोथेरेपिस्ट को बोलते हैं मालिश वाला है. हाँ. तो आप मालिश देता है? बोलते थे नहीं. अरे मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है. सवाल क्या है? Come on, Ryan, man. Auntie. आपका फेवरेट सक्सेस स्टोरी अपने करियर के अंदर? युवराज सिंह. Someone beating cancer and coming back not to normal life but to international sport. And now I get goosebumps. And a lot of things came together. A lot of things went our way. But Formally, I have to address you as Dr. Ashish. आशीष बोलो यार. आशीष बोलो. और क्या? अरे मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है. तो आशीष और डॉक्टर आशीष में हिंदी में क्या? डॉक्टर हिंदी में थोड़ी बोलना है. डॉक्टर साहब. डॉक्टर साहब. डॉक्टर साहब. So, how many years do we know each other? कितना साल हो गया? I had just come back from England, right? 2009. I had just come back from England and I was... नौकरी मिल गया? हाँ, नौकरी मिलके ही आया था. अच्छा. And then I had joined the National Cricket Academy. And then we were looking, or I was frantically looking for someone who could cover the nutrition side of things. And I had no contacts in India whatsoever. किसने आपको सिलेक्ट किया नेशनल क्रिकेट एकेडमी के लिए? इंटरव्यू कैसा था? अच्छा सिलेक्शन था. हाँ, सिलेक्टेड था. So at the time, I can't even remember actually. I can't remember the interview panel. But when I came, my entire support system that I was falling back on, sports med doctors, radiologists, orthopedic surgeons, all of them were from back in England because that's where I was for those 10 years before that. आपने कुछ प्लेयर एक इंजेक्शन के लिए इंग्लैंड गया, राइट? Correct. So that is how much I was relying on them, that for even a small shot, I was taking them on a round trip. And then of course that's unsustainable, right, Ryan? It's not, you can't do that forever. And then that's when we were looking, and then you came in, highly recommended. And now my question to you is that you look exactly the same now as you did then. Longevity इतना कर रहे हैं. थोड़ा वाइट हेयर है. डाई किया क्या? नहीं, डाई नहीं किया. Seriously? डाई करेगा तो टेस्टोस्टेरोन इफेक्ट होता है, पता है? No, I didn't know that. No, that's not why I don't dye. But I think I look cool with my little bit of... Longevity is your genetics, but 90% in my opinion is आपका जो thought process and food. 100% agree with you. So that sort of thing. So 2009 हम लोग मिला क्रिकेटर्स के साथ. Correct. पहला तो शिखर धवन मेरे साथ था. Coolest chap on the planet. Absolutely. Love him. What a great guy. आप यहाँ आज है क्योंकि you were instrumental in helping BCI set lot of systems into place for the support team and stuff like that. आपके ओपिनियन कि BCCI ये ने क्यों किया? क्या उनके पास ज़्यादा पैसा था या विजन था, कैसा था? नहीं, I think eventually every sports body या every administrator realizes कि health and fitness is the mainstay of sport, right? What is the first thing that you need for your players, from your players rather, इसके available रहना चाहिए ना on the day of selection. वो available कैसे रहेगा? वो available रहेगा which means injury free. तो वो fitness, चलो we can talk about कितना fit हो, लेकिन available तो रहना, injury free तो रहेगा. तो then there was a lot of attention paid to ensuring that our boys were injury free, which means they needed the best doctors, the best physios, the best strength and conditioning coaches, best nutritionists. So
जो पहला बार आपको मिला, one thing that I saw is that you are true medical professional, never starstruck. कि इतना सारा players from the Virat Kohlis to the Rohit Sharmas to the Shikhar Dhawans to the Robin Uthapas to the Yuvraj Singh, Harbhajan Singh, all the stalwarts in cricket. You were never starstruck. What was your secret? No, because that's how I was raised. I think my formative years as a professional, personal separate, were in the UK, where it is the National Health Service. It's for all, and doesn't matter who you are, the system treats you exactly the same. So that is where I did my first job. And then with the BCCI was pretty much my second or third job. It was second with the Essex County Club. And then the third job here. And then I was carrying the same process here. But credit to the system here, the process, the society, the people, it wasn't questioned ever. So when I was treating... This is going entirely in English. थोड़ा हिंदी में आप. हाँ. इसको देख के हिंदी निकलती नहीं मेरे मुंह से. टाई वाई लगा के बैठा है ये. कुर्ता पहनाओ उसको पहले. मेरे को लगता है इसको समझ ही नहीं आएगी, तो ऐसा हो जाता है हिंदी बोलती. तो इसको रिवाइंड करने का है? नहीं चलेगा. हाँ. कहाँ थे हम? कहाँ थे? सॉरी. तो लेकिन लड़कों ने, प्लेयर्स ने, एडमिनिस्ट्रेटर्स ने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि अरे आप जूनियर प्लेयर को भी वैसे ही ट्रीट करते हो. सीनियर ना किसी ने किया. आई रिमेंबर एक बार देयर वाज अ जूनियर प्लेयर एंड ही रिमाइंडेड मी अ लॉट लेटर कि सर उस दिन मुझे बड़ा अजीब लगा कि आई थिंक संदीप शर्मा था शायद, दैट फास्ट बॉलर. बोला सर अब विराट आए हुए थे और मैं लेकिन पहले आया था, आपने विराट को बैठने को बोला और मुझे पहले अटेंड किया, मुझे डर लग रहा था. मैंने कहा बट विराट वॉज कंफर्टेबल विद इट, आई वॉज कंफर्टेबल विद इट, तुम क्यों परेशान हो रहे थे? तो बोला क्योंकि मुझे लगा वो हायरार्की. बट देन in that work environment, and that's the credit to to everyone who was there in that environment. Okay, that is how it is accepted, and it was accepted. And now my obsession is with democratizing it completely. कि जो आप सेलिब्रिटी हैं या नहीं है तो एक चीज़ है, लेकिन आप प्लेयर हैं या एक नॉन एथलीट हैं, आम इंसान हैं, उनको भी बॉडी तो सेम है, तो उस बॉडी को ट्रीटमेंट भी सेम होना चाहिए. उस इंटेंशन के साथ अब हम बाकी काम कर रहे हैं. तो आपका एक्सपीरियंस के अंदर इंडिया अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 71st पोजीशन में ओलंपिक्स में आ गया. और मेरे ख्याल से वी हैव टू चेंज अ लॉट इन द डेमोक्रेटाइजेशन टू आवर एथलीट्स इन ऑल स्पोर्ट्स. ट्रू, काफ़ी चीज़ करने का है. वेरी ट्रू. यू हैड स्टार्टेड ऑफ इन द नेशनल क्रिकेट अकेडमी, लॉट ऑफ सिस्टम्स आपने लाया, यूके से आया, बना दिया, लोग को मोटिवेट किया कि भाई ये प्रोटोकॉल, ये सिस्टम है. अगर हमको ओलंपिक्स पिच करने का है, यहाँ लेके आने का है, वी कैन नॉट बी एट 71st पोजिशन. व्हाट इज द वर्ड इन हिंदी? यू हैव टू कट योर नोज, राइट? नाक काटने का. उतना मत करो. हाँ, उतना नाक. आई ऑलवेज थॉट दैट यू हैव टू कट योर नोज. बट व्हाट डू वी नीड टू डू, आशीष? क्या करने का है? हमारा जो सिस्टम है, where are some of the small things? And for those of people who don't know, you run one of the most successful musculoskeletal clinics in the country, rehabilitation. In fact, I rehabbed my partially torn ACL at your clinic, and you called me up and you said, Ryan, when you want to get serious, come to us. And then I was like, Arey bhai, main kahan gaya? And then I was like, when I went to you guys, you started the whole process. And then I saw ki mera jo hamstring or quadricep ka ratio, nobody had ever told me that before. So give us some insights. What do we need to do as a country? Why did you name it YOS? YOS is Sanskrit for health and happiness. तो ये आपका क्लिनिक? ये मेरा सेंटर है. हाँ, हमारा सेंटर है, हमारा मिशन है, जहाँ पर हम एथलीट्स को, नॉन एथलीट्स को बराबर का ट्रीटमेंट देते हैं. तो आपको अवेलेबिलिटी की बात है ना, कि अगर आपको भी अवेलेबल रहना है, अगर मैं नॉन एथलीट हूँ,
मुझे अपनी जॉब के लिए अवेलेबल रहना है, अपनी फैमिली के लिए अवेलेबल रहना है. अगर मुझे अवेलेबल रहना है तो मैं 100% अवेलेबल रहना चाहता हूँ. बैक पेन के साथ नहीं, नी पेन के साथ नहीं, शोल्डर पेन के साथ नहीं, 100% अवेलेबल. वो 100% अवेलेबल मैं कैसे रहूँगा अगर सिस्टम्स प्रोसेसेस नहीं होंगे मुझे हेल्प करने के लिए. वो सिस्टम्स प्रोसेसेस हम डेवलप कर चुके हैं एथलीट्स के लिए, तो हमारा काम खाली उनको, बाकी लोगों को एक्सपोज करना था उसी सिस्टम प्रोसेस से. तो डॉक्टर आशीष, ये अवेलेबिलिटी कहना का मतलब क्या है? सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल. 2011 वर्ल्ड कप के बाद नेक्स्ट टूर था वेस्ट इंडीज टूर, जहां पर हम टेस्ट मैच और वनडे खेल रहे थे. वहां पर विराट का टेस्ट डेब्यू हुआ और विराट सब्सिक्वेंट टेस्ट सीरीज में ही वॉजंट पिक्ड, युवराज वॉज पिक्ड फॉर हिम. तो उसने वहाँ पर टूर ख़त्म किया. एंड व्हाट्स द लॉजिकल थिंग दैट यू वुड एक्सपेक्ट, यंग प्लेयर, अभी वर्ल्ड कप खेला है, उसके बाद एक और टूर किया है, गो बैक होम एज अ वर्ल्ड कप विनर, एन्जॉय, रिलैक्स. ही वेंट टू द नेशनल क्रिकेट अकेडमी टू कंटिन्यू टू बी इन अ पीक health, peak fitness condition and be available. और हुआ क्या, सेकेंड टेस्ट मैच में युवराज सिंह की उंगली में फ्रैक्चर हुआ अनफॉर्चुनेटली, एंड दे नीडेड अ रिप्लेसमेंट. विराट वाज अवेलेबल. दैट्स अवेलेबिलिटी, राइट? सो यू डू एवरीथिंग दैट यू कैन टू स्टे अवेलेबल फॉर लाइफ. It isn't that the availability is only going to affect people who are reaching for the stars. आप अवेलेबल रहेंगे ना अपने जॉब के लिए, कल के लिए. आपके जॉब में कल कुछ भी हो सकता है, आप उसके लिए अवेलेबल हैं. पर आप अवेलेबल कैसे हैं? बिकॉज यू आर माइंडफुल, लाइक यू सेड अ फ्यू मिनट्स अगो, राइट? माइंडफुल ऑफ हु यू आर एंड वॉट योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर सेल्फ इज. आप अपने आप को कैसे मेंटेन करेंगे? उस मेंटेनेंस में आपकी एक्सरसाइज है, आपका इंजरी फ्री रहना है, आपकी डाइट है, न्यूट्रिशन है, वो आप अपने आप का ध्यान रखेंगे. वो मेरे हिसाब से हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर विराट अवेलेबल नहीं था, you know who they would have picked? No. तो opportunity favors the prepared. The prepared, exactly. उसको हिंदी में कैसे बोलो? मौके पे चौका. मौके पर चौका. क्रिकेट टर्म. सो ठीक है, अवेलेबिलिटी होना चाहिए, प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए. अगर हमको मेडल जीतने का है ओलंपिक्स के अंदर, few things that Dr. Ashish has noticed that all our athletes have to start doing. So कितने frustrated, मतलब through Olympics, I think we've spoken the most through Olympics. Our frustration with so many things that, you know, as people who understand sport, थोड़ा सा different कर सकते थे. I don't know, for better, hopefully for better. And I think that's where we had also started, you know, talking about the fact that इसको हमें एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डालना चाहिए. तो पहली चीज अवेलेबिलिटी थी, तो लोग अवेलेबल थे. अवेलेबिलिटी के बाद फिटनेस के बाद फिटनेस के सारे एस्पेक्ट्स, फ्रॉम माइंड, बॉडी, सोल, योर न्यूट्रिशन, एवरीथिंग कवर्ड इन अ मैनर दैट इज वर्ल्ड क्लास. मेरा पर्सनल, you know, and a lot of people for various reasons don't agree with this, but मैं कह रहा हूँ कि जो एथलीट इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इंडिया क्या है? वो भारत है ना. हम हैं वो भारतीय जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहा है. वो सबसेट है हमारी सोसाइटी का. तो अगर एज अ सोसाइटी हमारा स्टैंडर्ड फिटनेस का एक सर्टन लेवल पे रहेगा, तो द सबसेट ऑटोमेटिकली एलिवेट्स. हाउ डू यू एक्सपेक्ट a phenomenal subset in an average population, सब एवरेज भी कई सिचुएशंस में, इफ यू लुक एट फिटनेस. तो मैं देख रहा हूँ 100 मीटर्स की रेस, पेट निकाल के चाय और समोसे खाते हुए, लेकिन मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी सोसाइटी का कोई एक बच्चा सारी उम्र मेहनत करके मेरे लिए मेडल लेके आए. क्यों भाई? कैसे? हर स्कूल में हर बच्चा दौड़ेगा, लेकिन आप भी दौड़ोगे, आप भी खेलोगे, तो आपका बच्चा भी खेलेगा. जब सारे बच्चे खेलेंगे तो उसमें एक एक्सेप्शनल कोई निकलेगा.
तो मतलब ग्रास रूट सिस्टम होना चाहिए exactly. और पेरेंट्स और जो मिडिल एज सोसाइटी उसको इंस्पिरेशनल होना चाहिए फॉर द चिल्ड्रन. Yeah, and the acceptance of the role that physical activity and sport must play non-negotiably in everybody's life. ये आपने देखा आपका जो एसेक्स में जब स्पोर्ट्स मेडिसिन का हेड था टीम के लिए, व्हाट डिड यू सी ऑफ अ कल्चर देयर वहाँ? Culture is completely different. Culture is that you take pride in your running, your cycling, your swimming, your sport, the seasonal sport. So it is a part of your culture. और हमारे भी कल्चर का वो पार्ट है या था. हमारे भी कितने सारे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं. हमारे गाँवों में कबड्डी, कुश्ती, इनका एक दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर. वो सिटीज़ में आके स्पेस अवेलेबल है नहीं है, you know, the pressure of academic studying. बॉम्बे में जाएगा 50 मीटर पूल नहीं मिलता है स्विमिंग करने के लिए. There you go. बैंगलोर में आ जाएगा, you're caught in 3 hours of traffic to reach a 50 meter pool. Right. So I think I understand your point कि we can't expect somebody to get us a medal unless we're having much more number of grassroots level children working out and all. Exactly. Everybody, चाहे वो छत पे खेल रहे हैं, पर एवरीबडी इज प्लेइंग क्रिकेट ना. आपने भी खेला है, मैंने भी खेला है. तो हमारी क्रिकेट टीम कहाँ है? हम क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट अप्रिशिएट करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बट वी आर एड्रेसिंग दैट स्पोर्ट फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स. हम क्या रनिंग करते हैं, रनिंग देखते हैं, रनिंग को सपोर्ट करते हैं. क्या हम वॉलीबॉल देखते हैं, खेलते हैं, सपोर्ट करते हैं? क्या हम फुटबॉल खेलते हैं, देखते हैं, सपोर्ट करते हैं? वो आई थिंक एंगेजमेंट मल्टीपल लेवल पे अगर रहेगा तो दिस इज माई काइंड ऑफ फिलोसॉफिकल एंगल टू इट. फ्रॉम फिलोसफी टू फिजियोलॉजी, फिजियोथेरेपी. काफ़ी सारे लोग मतलब सोचता है कि फिजियोथेरेपी का मतलब कुछ टूटा फूटा, आई गॉट सम इंजरी, करेक्ट, तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने का है. करेक्ट. बट व्हाट आई सी एट योर्स इज अ होल डिफरेंट इमेज. एंड सब लोग को रिजल्ट जल्दी जल्दी चाहिए. तो वन फिजियोथेरेपिस्ट मतलब अरे इसके पास जाएगा तो मेरा हालत बुरा है, बाद में मेरे को जल्दी जल्दी. सो व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस इन योर्स एंड इन द नेशनल क्रिकेट अकेडमी विद अ प्लेयर एंड द आम आदमी? I think everybody appreciates honesty. Everybody appreciates honesty. Where I would like to see a change is in the accuracy of diagnosis. आपको प्रॉब्लम क्या है समझ आई एज अ क्लिनिशियन. आपको प्रॉब्लम अगर समझ आई है एज अ क्लिनिशियन, उसके बाद आपने वो प्रॉब्लम ठीक से कम्युनिकेट करी क्लाइंट को, प्लेयर को, जो आपके पास आए हैं. उसके बाद उसके लिए बराबर प्लान बनाया, और फिर क्या आपने ये सोचा कि इंजरी हुई क्यों. अगर ये सारे एस्पेक्ट्स आपने कवर कर लिए हैं तो आपने बहुत अच्छा काम किया. और यॉस हो, चाहे बीसीसीआई हो, चाहे नेशनल क्रिकेट एकेडमी हो, चाहे एनएचएस हो, चाहे एसएक्स हो, चाहे कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल जहाँ मैंने काम किया, कहीं भी सिस्टम्स जो आप बोल रहे थे कि आप सिस्टम सेटअप करें, सिस्टम सेटअप यही होता है ना कि एक्यूरेटली आप मेजर करेंगे वेरियस पैरामीटर्स को, तो आप एक्यूरेटली उसको डायग्नोज करेंगे, एक्यूरेटली उसका प्लान बनाएंगे, और फिर थ्रू अ लॉट ऑफ अदर एक्सपर्टीज एंड द हेल्प ऑफ अदर पीपल आप एस्टैब्लिश करेंगे कि हुआ क्यों. आप देखते हैं ना बहुत सारी इंजरीज बार बार होती हैं, वही इंजरी बार बार होती है, वही एथलीट उसी इंजरी से बार बार अनअवेलेबल होते हैं. बार बार क्यों हो रही है वो इंजरी? सो द रिहैबिलिटेशन उन लोग करते तो वेरी टेम्पररी होता है. तो उन 4 पहलुओं में, उन 4 एस्पेक्ट्स में कुछ मिसिंग था. अगर अनसक्सेसफुली हमने उसको मैनेज किया है, और अगर रिकरेंस हो रही है तो मैं उसको टू सम एक्सटेंट अनसक्सेसफुल मैनेजमेंट बोलूँगा. या तो हमने कुछ मेजर ठीक से नहीं किया जिसके कारण हमारा डायग्नोसिस अफेक्ट हुआ, मेजरमेंट अफेक्ट हुआ, डायग्नोसिस अफेक्ट हुआ, या हमारी डायग्नोसिस सही था लेकिन प्लानिंग ट्रीटमेंट वो अफेक्ट हुई, या हमें समझ नहीं आया कि हुआ क्यों था, इंजरी हुई क्यों थी. तो इंजरी मैनेज अच्छी हुई पर वो क्यों हुई थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वो दोबारा हो गई. क्योंकि स्पोर्ट तो वही है ना. अगर आपको फास्ट बॉलिंग करनी है तो ट्रीट होके वापस तो आप फास्ट बॉलिंग ही करेंगे.
और अगर उसी फास्ट बॉलिंग से वो इंजरी हुई तो फिर वही आउटकम होने वाला है. आपके प्रोफेशन के अंदर कोई एथलीट जो आपके लिए एक गूगली था in the physiotherapy world, can you talk to me about the case? Don't take names, but tell me the case. So there was a young bowler who came from Hyderabad. उस टाइम मैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी में था और उसको एक बहुत पिक्यूलियर इंजरी थी लोअर एब्डोमेन में, Okay. पेट के यहाँ पर. तो जब भी वो स्पिन बॉलिंग करता था तो 1-1.5 ओवर के बाद उसका पेन शुरू हो जाता था. Even now I don't know why we couldn't help him. हमने हर तरीके के स्कैन्स, एनालिसिस, और बायोमैकेनिकल, स्कैन सब क्लियर था. एवरीथिंग Everything is clear. was clear. और बहुत बार, एंड आई एम ह्यूज ऑन रिफर्ड पेन्स. सो अब referred pains का रिफर्ड मतलब? पेन्स का मतलब होता है कि प्रॉब्लम आपकी बैक में है लेकिन महसूस आपको घुटने में हो रही है. अच्छा. प्रॉब्लम आपके हिप में है, महसूस आपको पंजे में हो रही है, एंकल में हो रही है. और लोग ये नहीं समझते, लोग सोचते हैं कि अगर नी में दर्द है उसको नहीं सोचते कि ग्लूट्स में कुछ प्रॉब्लम है. आई वाज आल्सो लाइक दैट कि अरे भाई मेरा ACL का कुछ प्रॉब्लम था तो डॉक्टर ने बोला आपका हिप्स टाइट है, सो यू आर रोटेटिंग एट द नी. तो मैंने ये चीज़ क्या होता है, नी में दर्द होता है. सो कैन यू एक्सप्लेन टू इंडिया कि ये एसोसिएशन क्या होता है, दैट द बॉडी इज नॉट, पेन कैन नॉट ओनली बी एट वन प्लेस, इट कैन कम फ्रॉम एवरीवेयर. तो मेरे पास एक लेडी आई एक बार, एक्चुअली वो इंग्लैंड की बात है शायद, तो उन्होंने कहा मेरे एंकल में पेन है. एंड आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर दिस बिकॉज इट वाज एन अनकंफर्टेबल डिस्कशन. तो उन्होंने कहा मेरे एंकल में पेन है. मैंने उनको असेस किया, मैंने कहा आपका एंकल ठीक है, नी भी ठीक है, लेकिन आपको हिप में सीवियर आर्थराइटिस है. आपको कैसे पता? यू नॉट इवन अस, यू डोंट हैव एन एक्स-रे, यू डोंट हैव दिस. आई सेड लुक, एज क्लिनिशियंस वी आर ट्रेन्ड टू अंडरस्टैंड थिंग्स and diagnose them, and I am writing a letter to your GP and you must now undergo an x-ray of your hip. And then subsequently she wasn't convinced at all, and then she said whatever, but I'm not happy with this consultation, and then she left. And then she came 3 weeks later walking on a stick and she said, I want to thank you because it was such severe arthritis that they put me up for hip replacement surgery. And she got her hip replaced. It was so severe. But there was no pain in the hip at all. The pain was in her ankle. And that's how far you can refer the pain. So ये एक तरीका होता है रेफर करने का. दूसरा आपने सुना होगा साइटिका के बारे में. या बहुत लोग उसको सर्वाइकल बोलते हैं. सर्वाइकल इज जस्ट द नेक, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस. नाउ तो वहाँ नर्व्स या न्यूरल टिश्यू अगर इरिटेट हो जाए, पिंच हो जाए, तो वो जिस रूट पे वो जाता है उस पे वो दर्द महसूस हो सकता है. तो नेक का पेन, मेरे हाथ में अगर झंझनाहट हो सकती है, हाथ में दर्द हो सकता है, तो वो ये दूसरा तरीका है रेफर्ड पेन्स का, सोमैटिक रेफरल एंड काइंड ऑफ न्यूरल रेफरल्स. तो ये गूगली वाला केस कभी कभी हो सकता है. ये हो सकता है. वो एक केस है, वो अभी भी मुझे फ़ोन करते हैं. उनका अभी भी मेरे पास नंबर पता नहीं कहाँ से ढूंढ लिया उन्होंने. तो वो अभी भी मुझे फ़ोन करते हैं कि भैया याद है आप मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए थे. मैंने कहा याद है. It's always the difficult ones that we remember, the ones that we lose, and don't. It gives us nightmares sometimes. नहीं, सो एक स्टोरी है. तो हमने क्या, वी हैड स्टार्टेड इंसिस्टिंग NCA में कि हम रेगुलरली टेस्ट करेंगे. वो तो मैं बोल रहा हूँ ना, मेजरमेंट्स. ये तो you're talking about the VO2 max test, beep नहीं test. नहीं, we were doing force plate analysis, we were doing muscle strength assessment. थोड़ा explain करो for little bit. The rate of force generation. तो आप जब जंप करते हैं तो किस रेट पे आप ग्राउंड को पुश करते हैं और फिर किस रेट पे ग्राउंड आपको इसका पुश कुछ करता है. टेस्ट है, फोर्स प्लेट पे टेस्टिंग होती है. ठीक है. मसल स्ट्रेंथ की टेस्टिंग, Okay. वो अलग अलग तरीके से होती है. तो हमारे पास काफ़ी फैंसी गैजेट थे वहाँ पर NCA में जिससे हम वो सारी असेसमेंट्स करते थे. लेकिन the physio inside me was always kind of looking for to ensure कि we do everything that we can पहले to prevent injuries. So with that obsession, I used to, to a lot of people's, irritation, kept insisting for regular testing. तो रेगुलर टेस्टिंग एथलीट के लिए
Twice a year at least? 4 times a year we used to insist. 4 times a year? 4 times a year we used to insist. Because आप देख रहे हैं कि can I prevent the injury? हाँ, क्योंकि मैं इंजरी हो गई तो फिर तो नो फॉर मी आई वाज लाइक यार 20 साल से काम कर इंजरी हो गई तो मैनेज कर ही लेंगे, प्रिवेंट कैसे करनी है, राइट? दैट वाज द नेक्स्ट लेवल एंड वी वर वांटिंग टू. लेकिन काफी सारे एथलीट, अरे भाई आशीष के पास जाएगा, NCA और इसमें दर्द होता है, बताएगा तो मेरे से टीम निकालेगा. So can they hide it? नहीं, टेस्टिंग में कैसे हाइड करोगे? I'll bite my teeth and I'm like कुछ तो करेगा. कैसे? एक तो मैं, आप तो पकड़ सकते हैं. तो मैं ऊपर से मेरी टेक्नोलॉजी कैसे? नहीं. But were there players that would like be unfit and want to still play for the country? I wouldn't put it like that. I wouldn't Because put it like passion that. इतना होता है. हाँ, पैशन इतना है, जज्बा इतना है, इच्छा इतनी है. That is all they want to do. उन लोग willing है to break down their body to play for one more day. So there was a player. Actually, this is a fantastic example. There was a player who had a very unique bowling style, and kind of in their maturity. And I said, why your hamstrings keeps going? He said, आशीष भाई मुझे पता है कि मैं जो इस तरीके से bowling करता हूँ उससे मेरी hamstring जाती है. तो I said तो इसको change कर देगा. नहीं. This is what is making me effective. इसको touch नहीं कर सकते. I am happy for that muscle to tear every 3 months, 4 months, whatever it is. But इतना ज़्यादा passion के साथ आप deal करते हैं, that is. तो आपने ये सब टेस्टिंग लाया इसके अंदर. तो what are the stories of testing? Irritation हो गया, कोई funny story था? हाँ, इरिटेशन होते, फनी स्टोरी. किसी का मैंने किसी को एक प्लेयर है उनका, मैंने इन माय नाइविटी एंड काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेटली आई कांट ऑलवेज कवर ऑल bases to ensure that people don't take it otherwise. So I sent a long email explaining my findings in my excitement. यार क्या finding देखो. In my excitement and it's quite likely that this person might break down in this tour. I didn't realize that that person also marked in that email, right? And that person got extremely upset. How can you tell me? And rightly so. यार मैं टूर पे जा रहा हूँ, आप मुझे कह रहे हो कि my chances of breaking down are very high. It was stupid of me. But it was inadvertent. I didn't mean it that way. Unfortunately, they did break down. तो कभी-कभी जब ट्रूथ होता है, we try to उसको प्यार से बोलने का है and we hide the real truth. लेकिन करोगे क्या? See, the scientist in me is saying कि ये हो सकता है, right? What are the odds? I don't know what the odds are, but they're high. What do you do there? What would you do? आपको पता है, आपके स्क्वाड का एक लड़का जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका रोल, सबका रोल इम्पोर्टेंट है, वो शायद इंजर्ड हो सकता है. But लेकिन isn't it your responsibility कि उनका इंजरी प्रिवेंट करने का है और उसको रोकने का? बिना बताए कैसे करोगे प्रिवेंट? पहले तो प्रॉब्लम एक्सेप्ट करेंगे ना सब लोग मिलके कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसको भी एड्रेस करते हैं. पहले तो रिस्क एक्सेप्ट करोगे ना आप. तो इस रिस्क हाईलाइट करने पे प्रॉब्लम अगर हो जाए तो आशीष, डाइविंग लिटिल बिट डीपर, हाँ, ये सब चीज एथलीट के लिए होता है, 4 times टेस्टिंग होता है. लेकिन हम लोग, आपका जो यॉस का क्लिनिक, मेरा कोआनुशन क्लिनिक, 90% आम आदमी आता है, ये दर्द हो रहा है. राइटली सो, राइट? वो पॉपुलेशन वही है ना. हाँ. तो उसका स्लाइसिंग वही है, वही आना लेकिन चाहिए. इनका जो मैंडेटरी टेस्टिंग नहीं होता है. हाँ. सो व्हाट इज द न्यू प्रॉब्लम फॉर अर्बन इंडिया? ओके, 2 पार्ट्स में मैं अगेन आई विल एड्रेस दिस. पहला तो क्यों नहीं होता है? आप ब्लड टेस्ट कराते हैं? नहीं, आई मीन वी हैव टू, लोग को कन्विंस करना ही पड़ेगा. आप कराते हैं कि नहीं कराते? मैं करता हूँ 4 times a year. करते हैं ना. हाँ, करना चाहिए, इसीलिए करते हैं ना. हाँ. कि फ्री में हो रहा है इसलिए करते हैं? नहीं करना चाहिए इसलिए करते हैं. मैं भी करता हूँ ना अपना टेस्टिंग. मैं अपना हैमस्ट्रिंग्स, क्वाड्रिसेप्स, जो भी फोर्स प्लेट टेस्टिंग, क्योंकि अगर आप पहले आप नाउ गो बैक अ फ्यू इयर्स, ब्लड टेस्ट नहीं होते थे. करेक्ट. अब होने लगे. करेक्ट. मैं कह रहा हूँ कि अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को बताना कि करवाइए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है. अगर आप हार्ट एलिमेंट्स, डायबिटीज़,
इस तरीके की बीमारियां प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, आप नी पेन और बैक पेन क्यों नहीं प्रिवेंट करना चाह रहे? उसकी प्रिवेंशन पे आपको क्या कर रहे हैं? फोकस क्यों नहीं है? क्योंकि नी और बैक पेन से आपकी डायबिटीज भी अफेक्ट हो सकती है। कैसे? आप वॉक नहीं कर सकते। पहली चीज क्या बोलते हैं आपको डॉक्टर जब जाते हैं डायबिटीज? आप एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए। एक्सरसाइज इज अ मेडिसिन फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। एक्सरसाइज इज मेडिसिन was a slogan given out in the 90s by the American College of Physicians. Say exercise is medicine, right? Now, if exercise is medicine, are you fit to exercise? पहले तो आप चल पाएंगे? लेकिन सब लोग सोचते हैं कि वो विराट कोहली है और क्रिकेट खेलता है 50 years old and then they come with a torn shoulder to you and stuff like that. तो वही है ना। तो टेस्टिंग कैसा करने का है? Testing, and that is the thing, right? You can be tested even before you get injured to prevent injuries from happening. उस टेस्टिंग से आपको एक प्रोग्राम ऐसा मिलेगा जो आपके गैप्स को फिल करेगा। आपको पता चलता है मेरे में ये विटामिन कम है, आपके बोलते हैं ये विटामिन आपका कम है, ये आपका सप्लीमेंट है। सेम विद ह्यूमन बॉडी, आपका ये मसल वीक है, ये एस्पेक्ट आपकी फिटनेस का कम है, उसको टॉप अप करो। सबका मसल वीक क्यों हो रहा है? हम क्या कर रहे हैं आजकल, हमनी सिटीज में हम ज्यादातर टाइम किस पोजीशन में रहते हैं? अभी हम किस पोजीशन में हैं? सिटिंग, राइट? बैठने। सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। मतलब चेहरे के ऊपर बैठते तो सुट्टा मार रहे हैं। तो एयर पोल्यूशन से वैसी स्मोकिंग हो रही है। सिटिंग इज ऑल्सो द न्यू स्मोकिंग। इमेजिन व्हाट्स हैपनिंग टू आवर सिस्टम्स. Why is sitting the new smoking? Because everything, your cardiovascular system's not working. Now imagine the position that your back is in, right? I will just demonstrate to you. If from sitting, I were to just straighten up my knees, watch the position of my back. I've not done anything. ओ, इसका मतलब ऐसा सिटिंग। हाँ, अगर मैं घुटने मोड़ दूं तो मैं बैठा हूं, तो मैं अपनी बैक बेंड करके बैठा हूं सारा टाइम। 8 hours 10 hours a day. 8 hours 10 hours a day. अभी दैट स्ट्रेच कर ले थोड़ा। हाँ थोड़ा काफी देर हो गई। अभी फील हो गया। आज का सेकंड पॉडकास्ट हो, सब टाइट हो गया। तो लोग फिजियोथेरेपिस्ट को बोलते हैं मालिश वाला है। हाँ, तो आप मालिश देता है? बोलते थे नहीं। मालिश वाले नहीं होते ना, तो मालिश नहीं देते। हमारा काम क्या है? हमारा काम है मस्कुलर स्केलेटल कंडीशंस को, या एक्चुअली न्यूरोफिजियोज होते हैं जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में काम करते हैं। कार्डियक फिजियोज होते हैं जो कार्डियक रिहैबिलिटेशन करते हैं। कार्डियक का फिजियो भी होता है? कार्डियक रिहैबिलिटेशन। सो इफ यू हैव अ हार्ट एलिमेंट, अगर आपका कोई प्रोसीजर हुआ है हार्ट का, फ्रॉम देयर हाउ डू यू रिटर्न टू फंक्शन? सो देयर आर फिजियोज हु विल देन ग्रेजुअली गेट यू बैक टू फंक्शन। पीडियाट्रिक फिजियोज होते हैं, so many geriatric physios होते हैं, केयर ऑफ एल्डरली में। स्पोर्ट्स फिजियोज भी होते हैं? स्पोर्ट्स फिजियोज होते हैं। सो स्पोर्ट्स फिजियोज लाइमलाइट मिलते हैं क्योंकि सब लोग IPL खेलता है, ये खेलते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए आपने बोला कि सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। तो एक चीज़ होता है कि मैं 2025 में सब लोग को बोल रहा है कि भाई मेरा ऐप डाउनलोड करो, डाइट प्लान फॉलो करो, but I'm also telling them that they have to exercise 20 to 30 minutes a day. Absolutely. तो अगर आप फिजियो है, आप एक्सपर्ट है, which could be the best exercises for different age groups? पहला तो there is a base level cardio fitness that you absolutely require. Base level cardio मतलब? Base level cardio मतलब आपके एज के हिसाब से आपका कार्डियक, your ability to handle exercise. Okay. तो वो वाला इक्वेशन 220 माइनस योर एज is your maximal heart rate. That is one. But I'm saying you had to be so there are a lot of tests that you can do, and there's probably a discussion for another time. But आपका cardiovascular fitness age matched होना चाहिए कि ये एज में आपका cardiovascular fitness ऐसा होना चाहिए। So आपने, मैं आपको स्टोरी से सुना था, VO2 के बारे में एक बार बहुत बड़ी डिबेट हुई थी, योयो के बारे में। हाँ, ये योयो क्या है? योयो was a test of your कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। मतलब वो दो कोन के 1 लीटर, okay. दो कोन के बीच आपको दौड़ना पड़ेगा। हाँ, तो वो एक टेस्ट है, ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं। तो उसको और सिंप्लीफाई करके मैं आपको बताऊं, आपकी गाड़ी कितना एवरेज देती है 1 लीटर पेट्रोल में? 8 किलोमीटर।
कौन सी है, ट्रैक्टर है? तो आपकी बॉडी 1 लीटर ऑक्सीजन में क्या आउटपुट देती है? समझ गया, गॉट इट. मैंने आपको 1 लीटर ऑक्सीजन दिया, तो ज़्यादा मिलेगा तो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है. अगर नहीं 1 लीटर ऑक्सीजन ही दिया है मैंने आपको, तो आप उसमें कितनी दूर जा सकते हैं? ओके. वो आपकी कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी है. तो ये यूयो टेस्ट मेजर करता है. हाँ, ये यो टेस्ट उनका इज वन ऑफ द मेजर्स. ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं, तो 2 किलोमीटर टेस्ट है या इसलिए सब एथलीट मेरे को कॉल करते, रायन भाई टेस्ट 3 हफ्ते के बाद मेरा योयो टेस्ट है, क्या फूड खा सकते हैं जो मैं पास कर सकता हूँ. हाँ, तो फॉर कार्डियोवास्कुलर फिटनेस जो बेस होता है फिटनेस का हमारी, उसके लिए देयर इज एक्चुअली अ स्पेसिफिक फूड दैट कैन हेल्प इट. देखो, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस आता है जब आपका ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है. एग्रीड. तो अगर आपका खून जाड़ा होता है या पतला होता है, जाड़ा का मतलब प्लेटलेट एग्रीगेशन, करेक्ट, चांस ऑफ प्लाक, चांस ऑफ हार्ट अटैक. करेक्ट. तो टर्मरिक, ब्लड थिनर, नेचुरली आपका हल्दी, रियली आपका जो तो हल्दी दूध पी सकते हैं, तो ब्लड थिनर. चॉकलेट हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पॉलीफिनॉल्स. रिसर्च हैज शोन दैट चॉकलेट increases VO2 max ability by up to 9% over 45 days of 30 grams consumption. What? Omega-3 Fantastic. reduces platelet aggregation, so your blood becomes thinner. When your blood is thinner, removal of lactic acid, which means chances of exertion fatigue, is lower. Green peas have the highest arginine content. अच्छा. तो आपका जो मटर जो होता है, इसका आर्जिनिन का कंटेंट सबसे ज्यादा होता है. आर्जिनिन क्या है? आर्जिनिन एक वैसोडाइलेटर है. हाँ, जिससे तीसरा है, और ये चौथा है, पता नहीं कहाँ पहुंच गया. 5वां है तरबूज, वाटरमेलन. तो इसका जो सफेद वाला चीज, लाल वाला नहीं, लाल वाला खाने का है, लेकिन आपको जो सफेद वाला लेयर जो हम फेंक देते हैं, जो हम फेंकते हैं, हमारा घर के अंदर मेरा डोमेस्टिक हेल्थ सोचता है कि मैं कंजूस है क्योंकि फ्रूट पीलर ले रहा हूँ और उसको स्क्रैप कर रहा हूँ, स्किन स्क्रैप कर रहा है. बोलता है मोना इस पूरा मिक्सर के अंदर डालो. अच्छा. क्योंकि द वाइट हैज सिट्रुलिन मैलेट, और जब सिट्रुलिन मैलेट लेता है तो वो ब्रेक डाउन होते हैं शरीर के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आर्जिनिन. फैंटास्टिक यार, दिस इज ब्रिलियंट. थर्ड ऑन सिट्रुलिन मैलेट फ्रॉम वाटरमेलन, इट इज अ नेचुरल फैट बर्नर. जब आपका BMI ज़्यादा है तो आप तेज नहीं भाग सकता है. जब वेट लॉस हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर आउटपुट कैन इंक्रीज बिकॉज इट हैज़ टू पुल अ लेसर लोड. तो देर आर हंड्रेड्स ऑफ फूड्स, लेकिन नंबर 1 जो हार्ट को हेल्प करते हैं, पोषण कंट्रोल. ह्यूमन रेस हम लोग बहुत खा रहा है. करेक्ट. वी आर हंटर गैदरर्स. करेक्ट. लास्ट कितना 100 years में पहला तो 1 meal a day. अभी तो हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, प्री वर्कआउट, ड्यूरिंग वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट भी नहीं करते, प्री ड्यूरिंग पोस्ट भी कर रहे हैं. ये आपके ही कॉलीग्स या आपके ही प्रोफेशन के लोगों ने तो पहले लोगों को 6 मील बोले. आई थिंक क्या हो गया, हमारा जो 6 मील खाओ, हमारा जो मेडिकल ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जोड़ी किया कि भाई सबको फैक्ट्री में चाहिए. हाँ. तो फैक्ट्री में बंदा को 1 मील देगा तो वो काम कैसा करेगा? स्पोर्ट्समैन को काम कैसा करेगा? सो व्हाट्स हैपेंड इज, वो जो मेहनत फैक्ट्रीज के अंदर था, दादा या नाना जी जो मेहनत कर रहा था, वॉकिंग, आज के दिन हम वॉकिंग कितना कर रहे हैं? लेस देन 3000 स्टेप्स ऑन एन एवरेज. करेक्ट. सो इतना जो हो रहा है, आई थिंक दैट इज आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम कि वेट हैज गॉन अप बिकॉज हम लोग वो 3 मील जो खा रहे हैं उसमें पोषण कंट्रोल नहीं है. करेक्ट. आउटसाइड फूड होता है. करेक्ट. हाँ, आउटसाइड फूड. एंड नाउ यू इमेजिन नाउ combining those tips of those foods that you mentioned with the right kind of 20 to 30 minute exercise every day. Imagine the kind of longevity it can give you. Imagine the kind of long-term benefits to other health conditions, whether it's your hormonal health, your cardiovascular health, your joint health. It's just fantastic, right? And it's a small thing to do. It's not even, I wouldn't even call it a price to pay. It's a small effort for such amazing returns. तो कमिंग बैक टू हमारा जो आम आदमी है ऑन दिस, कौन सा एक्सरसाइज करने का है, तो मैं सोचता कि उनको VO2 max का ज़रूरी नहीं है.
what is your advice to anyone who is not playing competitive sport? Recreational athlete है, हफ्ते के अंदर 7 days a week, how much of exercise या how much of वर्कआउट या क्या करने का, योगा करने का, पिलाटिस करने का, वॉकिंग करने का है. सब लोग का कंफ्यूजन है. वॉकिंग अच्छा है, मैं बोलते हैं वॉकिंग बहुत अच्छे है, फैट बर्निंग होता है. लेकिन मेरा पिलाटिस फ्रेंड का इंस्ट्रक्टर बोलते हैं पिलाटिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज. मेरा जिम ट्रेनर बोलते हैं भाई ये तो बेस्ट एक्सरसाइज है. जिसका धंधा जिस चीज से चल रहा है वो उसी के लिए वही बेस्ट है ना. वॉकिंग से किसी का बेनिफिट नहीं हो रहा है तो वॉकिंग सब बोल रहे हैं यार वॉकिंग क्या है. वॉकिंग, आई एग्री विद यू. वॉकिंग, मोबिलिटी इज लाइफ. Mobility is life. And life is mobility. If you can't, a lot of other mammals will actually die if they can't move. तो एक्सरसाइज ये डिजीज कैसे अफेक्ट करता है? So exercise में there is and exercise के बाद हम happiness की भी बात करते हैं. Exercise of the first thing that has to be done is for people to move, right? Walking, running, jogging, anything, but you need to move. Playing a sport. मैं टीवी के सामने एक साइकिल लगा सकता हूँ? Mindfulness रहेगा क्या उसमें? लगाओ, second best option मेरे लिए है. हाँ. But you talk about mindfulness a lot, right? The mindfulness of doing an activity. I don't believe in distracted form of activities. I see a lot of people putting music on while they're walking, while they're running. I think that activity needs to be absorbed, it needs to be enjoyed to its fullest. And how do you do that if you're distracted? That mindfulness, and that's also a time to actually, again, philosophically speaking, that's a time also for you to reset for mindfulness. When you're walking those 20 minutes to 30 minutes, and you are with yourself 100%, you're available 100%, sets the tone, right? Sets the tone. So, WHO talks about 150 minutes of exercise a week. अब उसको आप कहीं से भी slice dice कर लो. You require a certain amount of physical cardiovascular exercise, and the rest of it can be a combination of anything. Can be a combination of your resistance training, gym training, pilates, yoga. और हर body different है. किसी को flexibility से benefit ज़्यादा मिलेगा, किसी को स्टेबिलिटी से बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा जैसे पिलाटेस, किसी को मसल मास गेन. वी ऑल नो द बेनिफिट ऑफ मसल मास, ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ हैविंग गुड मसल मास. तो वो इट्स अ कॉम्बिनेशन दैट यू विल नीड. क्या ये सही है कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, वहाँ लिखा कि मसल इज वन ऑफ द ओनली एज रिवर्सिबल ऑर्गन्स. I agree with that 100%. तो मतलब इसका मतलब है जो 60-year-old का आदमी या औरत अगर वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या वो रेजिस्टेंस बैंड यूज करता है फिजियो के एडवाइस के ऊपर या एसएनसी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच का एडवाइस के ऊपर, क्या 50-60-year-old को जिम के अंदर जाने का है, ये रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना ही चाहिए? 90 साल भी 100 साल भी सबको जिम में जाने का है. लेकिन लोग बोलते हैं कि भाई हमारा लाइक का नहीं, हमारा एज का नहीं है जिम जाने के लिए. नहीं, तो दैट इज व्हाई वी आर सेटिंग अप सेंटर्स लाइक योर्स नाउ व्हिच आर completely open. So we have, and you must have seen it when you were there, okay, we have a 70-year-old also working out and a 17-year-old also working out in the same space. The objectives are different, hence the programs are different, the weights given to them are different, the exercises that they are doing might be different. लेकिन exercise तो चाहिए ना. Osteoporosis is again a huge area, right? Massive issues around that, around bone health and joint health. Joint health, also a subset of bone. Bone health के लिए, osteoporosis के लिए आप मुझे बताइए, as a health professional, which is that one thing that has been shown to have the most benefit in osteoporosis? Resistance training. Weight training. Loaded weights. Exactly. More than what your body weight is. And I also believe that gym is a substitute for not doing other functional stuff. अगर आप खेत में काम करते हैं, अगर आप गार्डनिंग का शौक है, अगर आप स्पोर्ट खेलते हैं, तो that suffices. लेकिन अगर आप और कोई एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं तो जिम जाइए ना. आपको एक सवाल पूछने का है कि ये जो
जिम के अंदर मैंने देखा कि काफ़ी सारे जिम के अंदर इंडिया के अंदर वो हमारा जो ट्रेनर एक जिम में था, ये चेन्नई में था, और पहला 3 महीने में गया, वहाँ एक अच्छा वाला लड़का था, वो हाउसकीपिंग कर रहा था। 4th मंथ में वो जिम ट्रेनर का टी-शर्ट पहन लिया और सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा था। तो मेरे ख्याल से ये इंडिया का सबसे मोस्ट अलार्मिंग प्रॉब्लम है। राइट कि हर कोई ट्रेनर बनता है और अच्छा बोलते हैं, अच्छा मसल दिखाते हैं, और रायन फर्नांडो जिम के अंदर जाएगा, सर अब बहुत पतला है, अब पावर लिफ्टिंग शुरू कर दो, आप 2 लीटर पेप्सी पी लो, 2 kg बटर चिकन खा लो, आपका वजन बढ़ जाएगा। नहीं तो वर्स्ट है इंजेक्शन लगाने का है, करेक्ट, टीनेजर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। करेक्ट। What should we look for in a good trainer? Because you in BCCI would hire strength and conditioning trainers who are the best in the world. Even at yours. We are even at yours. So yeah, of course, at the BCCI, of course, everybody आपका who's selection criteria क्या है? qualification. So I'm a big believer can you in tell us structured education. So there are qualifications. We can list it out. लेकिन a strength and conditioning coach is not a protected title in India. Protected title? A physiotherapist is a protected title. Doctor is a protected title. Engineer is a protected title. Strength and conditioning coach, क्योंकि ये बहुत recent profession है, it's not a protected title. इसका मतलब ये है कि अगर मैं qualified नहीं हूँ एक strength and conditioning coach की तरह, तो भी मैं अपने आप को strength and conditioning coach बुला सकता हूँ। या छोटे छोटे कोर्सेज हैं, 2 दिन के, 3 दिन के, 7 दिन के, जो आपको एक ट्रेनर का क्वालिफिकेशन दे देते हैं। क्या उतनी एजुकेशन काफ़ी है आपको समझने के लिए कि सेफली किसी को फिटनेस के पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कैसे ले जाया जाए सेफली? दैट इज़ द क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आस्क्ड। आप कैसे पता लगाएंगे कि आपका ट्रेनर क्वालिफाइड है कि नहीं? सर्टिफिकेशंस, आप उनके सर्टिफिकेशंस देख सकते हैं, और हम लिस्ट कर देंगे नीचे सारे सर्टिफिकेशंस जो कि जनरली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशंस हैं फॉर यू टू रिलाई ऑन देम। लेकिन लोग थोड़ा मतलब पैसे के ऊपर सोचता है, थोड़ा कंजूसी करता है, एंड देन दे आर लाइक, अरे भाई ये तो पर्सनल ट्रेनर है, 5,000 में मिलता है, लेकिन क्वालिफाइड सर्टिफाइड ट्रेनर तो 20,000 रुपीज़ ले रहा है। सो आप फिजियोथेरेपिस्ट है, आप इंजरी को देखता है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एन इंजरी फॉर एग्जाम्पल, टू टेल इंडिया की बाय इन्वेस्ट वेल इन प्रीहैब, इन्वेस्ट इन डूइंग योर टेस्टिंग, इन्वेस्ट इन अ गुड क्वालिटी ट्रेनर, क्योंकि बाद में आप पछताएगा। So economically speaking, that is why the low back pain is one of the most funded areas of research. Because the impact of low back pain on the economy is tremendous. Low back pain से अगर आप जॉब पे नहीं जा पा रहे, आप प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द सोसाइटी नहीं बन पा रहे, तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट्स द एंटायर इकोनॉमी, राइट? तो आप अपना तो है ही, लेकिन एज इफ यू लुक एट अस एज अ सोसाइटी एंड वी वांट टू मेंटेन आवर यूएसपी ऑफ बीइंग अ यंग पॉपुलेशन दैट इज प्रोडक्टिव, उसके लिए आपको फिट तो रहना पड़ेगा। खाली नंबर से क्या होगा कि इंडिया में एवरेज एज 36-38 जो भी है, और उसका मैं क्या करूं अगर वो फंक्शन ही नहीं कर सकता? तो इफ दे नॉट फंक्शनिंग एज अ 35-40 साल के आदमी की तरह या औरत की तरह अगर वो फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका क्या फ़ायदा है? तो दूसरा रीज़न क्या है एक्सरसाइज करने के लिए? तो दूसरी चीज़ ये है कि वी आर अगेन फिलोसॉफिकली स्पीकिंग वी ऑल वांट टू बी हैप्पी, राइट? विच आर द 4 हॉर्मोन्स, द केमिकल लोचा ऑफ हैप्पीनेस क्या है? विच आर द 4 हॉर्मोन्स दैट कीप यू हैप्पी? एंडोर्फिन, डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन. Which is that one thing that can give you all 4? Exercise. Will you ever get bored of exercising? Of course you will. And then what do? Which is the one thing
that will ensure that you don't get bored of exercising? That's a googly. Playing a sport. Playing a sport. Playing a sport is going to give you the best chemical combination, the best opportunity to be happy. And you don't get bored of it because you picked it up, na? You picked up your sport. आपने बोला मुझे बैडमिंटन खेलना है, मुझे टेनिस खेलना है, मुझे कबड्डी खेलनी है, मुझे कुश्ती करनी है. वो आपने चूज किया कि इसमें मुझे मजा आता है, तो आप उससे बोर नहीं होंगे. या आप 2 स्पोर्ट खेलें, 3 स्पोर्ट खेलें, लेकिन स्पोर्ट्स का ये जो इम्पोर्टेंस है ये हम सबको समझना है. इसलिए योर स्पोर्ट्स हेल्थ का मतलब ये नहीं कि मैं स्पोर्ट्स के लोगों को देख रहा हूँ कि आप मेरे लिए एक स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स वुमेन है, क्योंकि आपका स्पोर्ट हो सकता है आपका स्पोर्ट आपके पेट को वॉक कराना हो. आपको बहुत मजा आता है अपने डॉग के साथ खेलने में. आप उसके साथ पार्क में जाते हैं, उसके साथ फैच खेलते हैं, उसके साथ दौड़ते हैं. दैट्स योर स्पोर्ट. दैट्स फाइन. देयर इज अ लेडी इन द हाउस. वो हाउसवाइफ है और उसके छोटे बच्चे हैं और वो उनके साथ खेलती है, और ऊपर नीचे मकान में जाते हैं. ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मेरे पापा मेरे बच्चों के साथ खेलते हैं, तो वो उनका स्पोर्ट है. तो स्पोर्ट को थोड़ा हमें लूजली डिफाइन करना चाहिए सोसाइटी में कि जो एक्टिविटी को आप एंजॉय कर रहे हैं वो आपका स्पोर्ट है, और वो स्पोर्ट आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देगा, वो आपको इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स देगा कि लेट अस स्टार्ट कॉलिंग आवरसेल्फ स्पोर्ट्स पीपल. लेकिन ये वाला स्पोर्ट्स तो नहीं होता है ना, जो डोपामिन तो भी देता है. हम लोग वीडियो गेम खेलते हैं, इट्स ऑल्सो एन ई स्पोर्ट टुडे, बट आई डोंट थिंक दैट रिलीजेस द सेम सॉर्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड डोपामिन दैट वी नीड. ऑक्सीटोसिन तो हो ही नहीं सकता ना. वेयर इज ऑक्सीटोसिन फ्रॉम अ पैट ऑन द बैक, फ्रॉम अ फिजिकल कॉन्टैक्ट है ना ऑक्सीटोसिन. तो ऑक्सीटोसिन कैसे आएगा उसमें? सेरोटोनिन कैसे, मतलब सेरो ठीक है, यू विल गेट बिट्स एंड पीसेस ऑफ व्हाटएवर, बट कंप्लीट happiness formula, sport. If sports not there, exercise. So आज हम लोग सीखा कि भाई you can test, you can play a sport. It all moves towards happiness. Yes. आपका जिंदगी में कोई एथलीट जो आपने इंस्पायर किया? जिससे मैं इंस्पायर हुआ? हाँ. आई थिंक आई एम, आप बोल रहे थे शुरू में कि आप ऑस्ट्रक होते हैं. ऑस्ट्रक होता हूं मैं पूरी की पूरी स्पोर्ट्स पॉपुलेशन से. मैं ऑस्ट्रक हूं. कैसे? बिकॉज उनका जो डेडिकेशन है, उनका जो जज्बा है, उनका जो पैशन है, इट इज़ सो ब्यूटिफुल कि वो इंस्पिरेशनल है. जब मैं सुबह उठ के सोचता हूँ कि आज मैं इन एथलीट्स के साथ काम करने वाला हूँ, क्रिकेटर्स हैं, फुटबॉलर्स हैं, रनर्स हैं, बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, टेनिस प्लेयर्स हैं, वो जिस एक्साइटमेंट और एनर्जी को लाते हैं उसका मैं फ़ैन हूँ. वो है मेरा इन ऑ ऑफ, आई एम इन ऑ ऑफ दैट, ऑफ व्हाट दे ब्रिंग टू द टेबल. एंड आई थिंक, आई बिलीव दैट दे आर एबल टू डू दैट बिकॉज दे आर स्पोर्ट्स पीपल. एंड वी कैन ऑल डू दैट इफ वी start functioning like sports people. The energy levels, the happiness quotient, it's just tremendous. तो डॉक्टर आशीष, हमारा प्रोफेशन कभी कभी हम सोचते हैं कि भाई ये लाइन में क्यों गया. सो समटाइम्स वी हैव डेज वेयर वी आर फ्रस्ट्रेटेड, समटाइम्स वी हैव अमेजिंग डेज. एनी एथलीट और एनी मोमेंट that you can remember which is like, wow, I love this profession? So many. Every time anybody, athlete or non-athlete, achieve something that they've set out for. So कितने सारे लोग हमारे पास आते हैं कि मेरा मन है कि मैं 10 किलोमीटर दौड़ूं, मेरा मन है मैं ये वाला ट्रैक कर पाऊँ, लेकिन आई डोंट थिंक आई कैन डू इट. आई एम नॉट, मेरे घुटनों में दर्द है, बैक में पेन है, यहाँ से मैं उतना फिट कैसे हो पाऊँगा कि मैं ये कर पाऊँ. एंड यू सेट ऑफ ऑन दैट जर्नी विद देम and you become a part of that journey, and then when they achieve something, it becomes your achievement, right? I mean, sometimes it becomes so overwhelming and emotional जब आप देखते हैं कि उसने वो अचीव कर लिया और आप उसकी जर्नी का पार्ट थे. तो एक ऐसा डिस्टिंक्ट एग्जाम्पल है कि रेसलिंग का जूनियर वर्ल्ड चैम्पियन एक बार हमारे पास आया. उस टाइम मैं हॉस्पिटल में काम करता था. तो उन्होंने, एंड
रेसलिंग में जो जूनियर लेवल है उस पे उस टाइम पे इतना पब्लिसिटी उनको नहीं मिलता था, तो वो एक अंडर यूथ चैम्पियनशिप का एक प्लेयर था और उसका ACL का सर्जरी हुआ था और उसका रिहैब में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसका रिहैब बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बैक एंड फोर्थ सर्जन के पास भी, बट दैट किड जस्ट नेवर गेव अप एंड ही वॉज देयर every day 100%. From there, he came all the way back. He became a wrestler. He joined the army and won a medal for us in the World Army Championship. And I thought, okay, what an amazing thing. And I kept asking him, so why? मतलब यार, it's a lot of struggle. He said, नहीं सर, ये तो मुझे करना है क्योंकि मेरे गांव में लोगों को मुझसे उम्मीद है, मेरी फैमिली इधर मुझे सपोर्ट कर रही है, मुझे ये चाहिए. तो you see these things in movies, you read about them, but people like we are blessed to be a part of these stories on a daily basis. So yeah, it's probably one such story. अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट नहीं हो, you go back in your past life और भगवान को बोलेगा मेरे को वापस भेज दो, what would you have wanted to become? Another profession. Sports person. Sports person. Which sport? Cricket. Easiest thing to say, right? Yeah. Easiest thing. I'd love to be a tennis player. Tough sport. Tough sport. Tough sport. You're out there on your own. You're slugging it out. You know, highly technical. Demons है आपके दिमाग के अंदर, क्या है इसके 3 सेट हो गया, क्या इसको छोड़ो. It's such a beautiful sport. And of course, you know, cricket is cricket. And if I was a cricketer, I would have loved to be a fast bowler. Would have loved it. What, you know, probably the toughest sport in the world is a test fast bowler. Probably. Get out there. इतना लोड है. बहुत बॉडी पे, मतलब such an unnatural thing to do, right? Fast bowling. And then you're doing it over and over and over and over again. 5 test match series, 4 test match series. I don't think a regular person, even if you've played cricket, will understand what a test fast bowler goes through, what their body goes through. And here we troll Bumrah and all of these guys ki they get injured. It's criminal. It's criminal. Because we don't understand, right? Yeah, the forces on the body. Yeah. So the force plate studies have shown that the front leg 8 to 10 times your body weight. So every ball you bowl, 600 kgs weight. Every ball that you bowl, 8 to 10 times your body weight. And by the way, that force plate study has not taken into account कि जो पीछे वाली टांग जब आगे जाती है तो उसका क्या होता है, क्योंकि फोर्स प्लेट उन्होंने पीछे वाली टांग मेजर करी, आगे वाली टांग मेजर करी. पीछे वाली 3 to 4 times, आगे वाली 8 to 10 times. पर वो पीछे वाली जब आगे जाके आपको रोकती है, बिकॉज आपको डेंजर एरिया में नहीं जाना है, आपको फॉलो थ्रू रखना है, उसका तो हमारे पास मेजर है ही नहीं अभी, या मुझे नहीं पता, हो भी सकता है, बट मुझे, बिकॉज वी आर ऑल जस्ट ऑब्सेस्ड विद दैट 8 to 10 times एंड राइटली सो. तो ये है लोड हमारी बॉडी पे, in fact there was an article once that said that one of the famous cricketers said that all fast bowlers should eat non-veg, red meat. That's why the Pakistani bowlers are so thagda and fast. Wasim Akram, Imran Khan, Shoaib Akhtar. And obviously I was asked as a nutritionist कि क्या ये इसमें truth है या नहीं होता है. And the problem I feel is it's not the non-veg. हमारा जो इंडियन का डाइट है, जब प्लेयर्स खेलता है वो बैलेंस नहीं करता है. Right. Because if it's 6 times the load on that, imagine the damage that is happening. हर दिन का मसल, लिगामेंट, कार्टिलेज, तो स्टेम सेल होना चाहिए, रिप्रोडक्शन करने का रिपेयर प्रोसेस होना चाहिए ना. उसको रिपेयर भी तो करना है शाम को, अगले दिन जाने के लिए. रिपेयर के लिए बहुत अच्छा रॉ मटेरियल चाहिए. करेक्ट. समोसा, बटाटा वड़ा, चाय, आइसक्रीम, गुलाब जामुन खाएगा तो नहीं चलेगा, तो आप बटाटा वड़ा बन जाएगा. बटाटा वड़ा बोलर. तो डॉक्टर आशीष, हम लोग एथलीट का डाइट प्लान करता है, जेनेटिक टेस्टिंग करता है, ब्लड टेस्टिंग करता है, 4 बार करता है, लेकिन उसके बाद वो एथलीट आपके पास आते हैं. करेक्ट. आम आदमी के लिए क्या ये ज़रूरी है कि वो साल भर में एक बार
यॉस के पास आने का है टेस्टिंग करने के लिए. Absolutely. Absolutely. लेकिन क्यों? क्योंकि हमें exactly what we are trying to achieve with other testing, हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं कि हम प्रिवेंट कर सकें इलनेसेस को, एलिमेंट्स को हम प्रिवेंट कर सकें. लेकिन हम प्रिवेंट कर रहे हैं खाली मेडिकल साइड ऑफ थिंग्स. ये फिजिकल साइड का क्या करेंगे? आपको घुटना दर्द भी प्रिवेंट करना है, आपको आर्थराइटिस को स्लो डाउन करना है, आपको बैक पेन प्रिवेंट करना है, उसकी भी प्रिवेंशन पॉसिबल है. तो अगर आपको डायबिटीज़ की प्रिवेंशन, थायराइड प्रॉब्लम्स की प्रिवेंशन, बाकी लाइफस्टाइल एलिमेंट्स की प्रिवेंशन अगर करनी है तो मेक दिस ऑल्सो मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ ऑल्सो पार्ट ऑफ इट ना. उसकी भी प्रिवेंशन कीजिए. तो साल में एक बार अगर आप एनुअल हेल्थ चेक करते हैं, उस एनुअल हेल्थ चेक का पार्ट ये भी होना चाहिए. तो बिल्कुल ज़रूरी है सबके लिए. तो डॉक्टर, आम आदमी के लिए व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू कम टू योर्स टू गेट टेस्टेड? द बेस्ट टाइम इज व्हेन यू आर नॉट इंजर्ड. जब आपको कोई इंजरी नहीं है, आप आइए, टेस्ट करवाइए, और हम आपका इंजरी रिस्क होपफुली मिनिमाइज कर पाएंगे. तो इसका मतलब है जो लोग जिम करता है, जुम्बा करता है, 20s to 50 years of age, अब किसी भी एक्सरसाइज चालू करेगा, टेस्ट योर सेल्फ बिफोर यू स्टार्ट. हाँ बिल्कुल ना. क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, उसमें क्या गैप्स हैं, गैप्स तो आइडेंटिफाई करेंगे पहले. क्योंकि सब लोग हमारा क्लिनिक में आते हैं, मेरे को वेट लॉस करने का है, तो डाइट तो कम कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्सरसाइज भी करना ही पड़ेगा. बट लास्ट टाइम यू एक्सरसाइज वाज इन कॉलेज एंड दिस इज 20 years later. करेक्ट, एग्जैक्टली. दैट इज द यूज केस फॉर योर्स कि आपने अब शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज पर, या स्पोर्ट शुरू कर रहे हैं, आपने अपना रैकेट निकाल लिया, आपने अपना गोल्फ क्लब निकाल लिया, नया स्पोर्ट सीखना चाह रहे हैं, उसके लिए आप फिट हैं, आप फिटनेस के लिए कर रहे हैं, बट उसके लिए क्या आप उस स्टेप को लेने के लिए फिट हैं, या आप उस स्पोर्ट को अब शुरू करके इंजर्ड होने के चांस ज़्यादा हैं और फिट होने के चांस कम है? वो सवाल एक बार एड्रेस कर लें. और अगर आपको कोई इंजरी होती है, इमीडिएटली रीच आउट. अगर आपको वो इंजरी अपने आप ठीक होने वाली है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो अच्छा है वो, लेकिन एड्रेस तो किया आपने कम से कम. एक्चुअली आपको एक कन्फेशन शेयर करने का है. 48 years of age मेरा पार्शियल ACL का टेयर हो गया. जब आपके पास आया और आप लोग मेरा हैमस्ट्रिंग टू क्वाड्रिसेप्स का रेशो बताया, आई विश आई न्यू दैट एट 20 years of age. एग्जैक्टली. क्योंकि then I would have invested not in doing stronger punches and stronger kicks, but invested in getting strength training done so that the muscles could take the rigors of the sport. करेक्ट. So I think जिन लोगों को मिडिल लाइफ में है, absolutely focus on your exercise, क्योंकि ये मेरा एक एडवाइस है कि जो भी स्पोर्ट्स आप ले रहे हैं recreationally, you want to be doing it in your 50s, 60s, 70s, 80 years of age. Absolutely. और अगर आप, what is the word, अपना when you are a self expert, you think हमको सब कुछ समझता है, right? I am the expert and I will do the activity. Then when you injure yourself, chances ये हो सकता है you cannot come back from that आपको injury. रोकना पड़ेगा स्पोर्ट. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. उसको recreational retirement बोलते हैं. हाँ, रिटायर्ड हर्ट नहीं होना भाई. रिटायर्ड नहीं होना चाहिए. रिटायर्ड हर्ट नहीं होना है. You carry on. You have to come back to the sport, or you have to carry on that sport. Who's been your oldest client? I think we had a 80-something-year-old who said 80-year-old. 80-something. 80. He was above 80, and he said, "Do you think it's possible for me to do a 5K?" And I said, "What do you think it's possible?" He said, "It should be." I said, "Yeah, of course it is then." We assessed him completely medically to make sure that we were covering all angles. And he did it. I think it took him about just over 3 months. He did it. At a slow pace, of course, he didn't sprint through 5Ks, but he did it. An 80K to even walk at 80 years of age to walk 5 kilometers is Exactly right. something big, right? Exactly. जैसा रैपिड स्प्रिंटिंग होता है, डॉक्टर आशीष, रैपिड फायर राउंड, ठीक है, बताइए. 100 meters dash. सबसे कॉमन इंजरी कौन सा होता है, एंड ट्रीटिंग इट वाज योर चैलेंज? Backs and knees. Backs Backs and knees are the most common, most complicated also.
आइस पैक या हीट थेरेपी? जो आपको पसंद आए. There is been tons of research on it. There is no conclusive evidence. जो आपको ठीक लगे. मैंने दोनों चाहिए. दोनों लगाओ. Contrast. हाँ, दोनों लगाओ. कुछ नहीं होता है. कुछ नहीं होता है. So whatever सब कुछ होता है. whatever my body likes. Exactly. जब शरीर बोलते हैं आपको थप्पड़ मिलेगा, आपको ध्यान देखना पड़ेगा. ठीक है. फास्टेस्ट रिकवरी आपने देखा? A lot of success stories. One stands out. Early 2020 में ईशान शर्मा twisted his ankle, and we did everything that we could. Innovation, creativity, applied sciences, सब कुछ मिला के. I think that was the fastest that I've seen anybody come out of that kind of an injury. So उसमें we were obsessed to that level because he had to travel to New Zealand after that. So through that entire recovery, all of us turned our clocks to match New Zealand time. So we were getting up at 1 in the morning. His day would start in New Zealand time ताकि जब वो न्यूजीलैंड पहुंचे तो उसको acclimatization हो गया. So that was the level at which we were obsessing over ensuring that every piece was as best as we could do it. ये मैंने किया रियो ओलंपिक्स में. अच्छा. जब सब एथलीट्स वहाँ जा रहा था एंड नन ऑफ देम वर अवेयर. तो जिन एथलीट्स को रायन फर्नांडो डाइट प्लान के ऊपर था, मैंने बोला योर ब्रेकफास्ट नाउ बिकम्स योर डिनर. वाओ, फैंटास्टिक. क्योंकि आपका जो गट है, द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स इज आल्सो डिपेंडेंट कि कौन सा मील कब ले रहा है. राइट. अच्छा, करेक्ट. कोई एथलीट आपने देखा ना आईपीएल के अंदर कितना सारे कैफीन पीना ही पड़ेगा अलर्ट होने का. करेक्ट. And then it takes 2 months for them to come back from an IPL schedule. Correct. So imagine India team going for an IPL T20, and then you shift to an international T20 in the other side of the world. Jet lag, different dietary timings. Correct. आपका potty का problem भी होता है. Potty बोलते हैं अभी सुबह. Yes, सुबह यार, तुम्हें सुबह आना था. अभी तुम शाम को बुला रहे हो. So everyone gets it, right? So it's there. Back pain, आपने बोला most common injury. Three exercises to prevent back pain. And this is a generic thing that I'm saying. These are my 3 favorite go-to exercises for back pain generally, right? लेकिन consult your physio before you actually start doing it. Of course. It's not a cure. These are probably will be there in my program. Is bridging, upper back mobility, and extensions. Next. ये सूर्य नमस्कार कैसा है? Has everything, ना? Correct. Has everything. It's a beautiful exercise. लेकिन लोग बोलते हैं मैं 100 सूर्य नमस्कार करता हूँ, उसके बाद बैक इंजरी होता है. नहीं, बैक उसके अलावा आप 3 घंटे की ट्रैफिक में भी बैठते हैं, उसके बाद शायद आप जिम में 100 किलो आड़े तिरछे फॉर्म से भी उठाते होंगे. मतलब हमें पता नहीं ना बाकी क्या करते हैं. तो टू पिन इट डाउन ऑन ए पर्टिकुलर एक्सरसाइज, देन इफ दैट इज ऑल यू आर डूइंग and you're doing it in perfect form, I doubt it. Unless there is an underlying structural problem. ये भी हो सकता है. Golf player, छोटा बॉल डंडा होता है, उसको 120 kgs का डेडलिफ्ट कर रहा है. मंजूर है थप्पड़ देने का? है नहीं, मंजूर है अगर वो सही कर पा रहा है. किस कारण से कर रहा है, उसका गोल्फ में कितना बेनिफिट होगा पता नहीं, लेकिन क्यों नहीं कर सकता. लिफ्टिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम if it's done with the right form. You recover enough to then do it again if you want to. It's a high risk reward exercise. You must be absolutely certain of the reward that you're after. It's a high risk reward, right? Risk high है, वो आपको लेना चाहिए कि नहीं, आपके स्पोर्ट में उसका हेल्प होगा कि नहीं. That's the decision that you take. और वो डिसीजन कौन लेता है? एसएनसी लेता है या फिजियो? एसएनसीज जनरली लेंगे. Generally SNCs will take that decision. लेकिन अगर एथलीट इंजर्ड है, नहीं इंजर्ड है तो ऑब्वियसली फिजियो, बट द फिजियो विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ दैट डिसीजन मेकिंग इफ इट्स प्रो स्पोर्ट. अगर वो प्रोफेशनल स्पोर्ट है तो देन देयर इज अ डिस्कशन, राइट, कि हम क्यों कर रहे हैं. फिजिकल रिकवरी चैलेंजिंग है या मेंटल रिकवरी चैलेंजिंग है? मेंटल रिकवरी. आपका फेवरेट सक्सेस स्टोरी अपने करियर के अंदर? युवराज सिंह. क्यों? Someone beating cancer and coming back not to normal life but to international sport. Even now I get goosebumps thinking about it. It's phenomenal. And a lot of things came together. A lot of things were
went our way, but the outcome was unbelievable. Plus 6 sixes. वो पहले था, but हाँ. अगर आप एक दिन के लिए मौका मिलेगा स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनने के लिए, what would you change? Or what would you do better for Indian sports? So I would have a physio, a strength and conditioning coach, and a nutritionist in every school and collect a ton of data. In every school? In every school and collect a ton of data. क्यों? Kyunki that is where I will start grooming talent. That is where I will teach my society how to be fitter and better for whatever it is that the society wants to achieve. Dr. Ashish, pleasure. Thank you so much. Thank you so much. For your time today. You're very welcome. Thank you. Thanks for having me. Thank you for watching this far. It's been an amazing episode and I'm so grateful to have you till the end. If you like this video, please share this video with your loved ones. Better still, gift me a subscribe, a like, or even a comment and we'll come back to you.